বাইদেউ আপুনি আমাৰ বৰবৰা মৈদামলৈ আহিম বুলি কৈছিলে। আপুনি যে নাহিলে আমাৰ গাঁওবাসী বহুত এজাক হৈ আপোনাক ওচৰৰ পৰা চাম বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু আপুনি নাহিলে। আমাক সাহায্য নালাগে, আমাক মই আপোনাক ওচৰৰ পৰা চাবলৈ বিচাৰিছিলো। আমি বৰুৱা বাইদেউ আপুনি আহিম বুলি কৈছিলে, আপুনি নাহিলে। আমি গাঁওবাসী হৈ আমি 10টাৰ পৰা 1টালৈকে ৰখি আছিলো, আপুনি নাহিলে। মনটো বেয়া লাগি গলো। নমস্কাৰ। এয়া চাওক আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা। বানে সকলো শেষ কৰি নিলে। মোৰ হাৰমনিয়ামখনো পানীত ডুবি গ'ল। এই সময়ত মোৰ জুবিন গাৰ্গদেৱলৈ মনত পৰিছে। সেইকাৰণে মই জুবিন গাৰ্গদেৱৰ কেওফালে গুজৰি সেই গীতটি গাবলৈ লৈছোঁ। কেওফালে গুজৰি গুমৰি আহিলে বান, উটুৱাই নিলেহি গাঁওখন সুখৰে ঘৰখন। পলকতে উটি গ'ল গোহালিৰে গৰুহাল, পলকত নিয়তিয়ে মোক কৰিলে কঙাল। উটুৱাই নিলেহি গাঁওখন সুখৰে ঘৰখন। কেওফালে গুজৰি গুমৰি আহিলে বান, উটুৱাই নিলেহি গাঁওখন সুখৰে ঘৰখন। পলকতে উটি গ'ল গোহালিৰে গৰুহাল, পলকত নিয়তিয়ে মোক কৰিলে কঙাল। নামচাং নৈ নামচাং নৈ নামচাং নৈ, কিয়নো আনিলি মৰণৰে বান। নামচাং নৈ নামচাং নৈ নামচাং নৈ, কিয়নো আনিলি মৰণৰে বান। খেতি ডৰাও ভতাই দে ভঁৰালৰে ধান, খেতি ডৰাও ভতাই দে ভঁৰালৰে ধান। আছেনে তোৰ গুৰিতে ইয়াৰে সমিধান। কেওফালে গুজৰি গুমৰি আহিলে বান, উটুৱাই নিলেহি গাঁওখন সুখৰে ঘৰখন। পলকতে উটি গ'ল গোহালিৰে গৰুহাল, পলকত নিয়তিয়ে মোক কৰিলে কঙাল। ধন্যবাদ। কি পালা তুমি? বটলৰ পেঞ্চিল পালা। তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া। টিংকু বৰা। বঢ়িয়া। আৰু লৈ যোৱা বঢ়িয়া। বাই বাই। मुझे लगता है अभी काफी हद तक ठीक हुआ है। पानी जो सूख रहा है उसकी वजह से घरों के अंदर पूरा मिट्टी हो गया है, चारों तरफ फैल गया है। मैं सुबह से कितने जगह गई, मुझे लगा मैंने देखा लोगों के बीच खाना से ज्यादा जरूरी है घर साफ करने वाला चीजें, जैसे कि फिनाइल, ब्लीचिंग पाउडर, डेटॉल, मच्छरदानी, जो ये सभी चीज हम लोग आज लेके आए हैं। वाला कपड़ा, नाइटी, वो सब। और खाना, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं हेल्प करने के लिए, तो खाना ही नहीं रहा है, सिर्फ वो सब के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हम लोग अगर सब मिलके हेल्प करने के लिए आ जाएंगे तो ये जो परिस्थिति है बहुत जल्दी हम लोग थोड़ा सा ठीक कर पाएंगे। जो हुआ हम कभी उसे ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो लोग हैं इनके बीच रह के मुझे ये महसूस हो रहा है उनका दुख महसूस नहीं कर सकते। हम दिलासा दे सकते हैं उनको कि चलिए कुछ तो होगा, उनको थोड़ा सा मदद कर सकते हैं। तो उसी वजह से ही हम यहाँ पे आए। पीटी हजारिका जी भी हमेशा वही चाहते हैं कि
जो लोग थोड़े दुख में हैं उनको थोड़ा सा कुछ हम हेल्प कर सकें, क्योंकि मिनिस्टर तो उनका डिपार्टमेंट ही है असेंबली का, तो पार्लियामेंट्री जैसे वो यहाँ पे खुद नहीं आ सके, लेकिन पहले दिन से कहीं पे चावल दाल हो, खाने वाला जो भी चीज हो, जैसे हो सकता है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं हर दिन हमारे परिवार की तरफ से। तो अभी थोड़ा सा पानी सूख रहा है, तो मुझे लगता है कि खाना से ज्यादा ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं जो आज हम लेके आए हैं, और आने वाले दिन में हम लोगों के बीच रह के ही जो भी हमसे हो पाए करने की कोशिश करेंगे। মোৰ যিটো অৱস্থা হৈ আছে তাৰমানে মই এতিয়াও ঘৰৰ ভিতৰত সোমাব পৰা নাই। আমাৰ যিমানখিনি মানুহ আছে সেই তেওঁলোক হয়তো সোমাইছে চব, কিন্তু মই এতিয়ালৈকে বৰ্তমান ঘৰৰ ভিতৰত সোমাব পৰা অৱস্থা নাই। যিটো তাৰমানে ঢৌটো আহিলে, মেইন ঢৌ মানে মোৰ ঘৰটোতে পৰিলে, সেইকাৰণে মানে মোৰ একোৱেই নাই ক'বলৈ গ'লে। গৰু বাচ্ছা আছিলে, ঘৰটো মানে ঘৰৰ ফ্ৰণ্টত মই মানে চৰকাৰী ঘৰ এটা হাফলকে গাঁঠিছিলোহে, সেই ৱাল কেইখনে ফ্ৰণ্টৰ বেককেইখন মাত্ৰ ৰাখিলে, বাকী ঢৌটো ঢাকা খাই বেক চাইডেদি গৈ গোটেই তাৰমানে বেৰ চাই গোটেই ঘৰ নাই। বাকী ঘৰৰ ভিতৰত যি বয় বস্তু আছিল চব নাই। গৰু আছিলে 5টা, গৰু 5টা এটাও নাথাকিলে, মৰি পেলাই ভিতৰতে সোমালগৈ গৈ হোটেল লৈ গ'লগৈ। আৰু গৰুকেইটাও ভাবিছে বাচিবলৈকে ঘৰলৈ যাব ন, সিহঁতে ঘৰলৈ যোৱাৰ কাৰণে হয়তো তেহেঁতে মৰিলে। এতিয়া মোৰ মানে বাকী একোৱেই নাই, তামতিৰ কাৰণে যিকেইটা কৰিছিলোঁ সোণৰ বস্তু সেইকেইটাও বৰ্তমান একো বিচাৰি পোৱা নাই। মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যিখিনি মোৰ নিচিনাকৈ যিখিনি বেছিকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তেওঁলোকক অকণমান ভালদৰে চাব লাগে, আৰু তেওঁ যি ব্যৱস্থা লয় সেইখিনি যেন সকলোৱে পাম। তাত তলত যিখিনি মানুহ আছে হয়তো কিছুমানে পাবও পাৰে নাপাবও পাৰে, তেনেকুৱা যাতে নহয়, সকলোৱে যদি সমানে যিখিনি হেৰুৱাইছে সেইখিনি পুনৰ পায়। এতিয়া জীয়াই থকাও কোনো সাৰ্থক নোহোৱা নিচিনা লাগিছে। ঘৰত আজিলৈকে সোমাবই পৰা নাই, চাঙৰ ওপৰতে এনেই বাঁহৰ চাং, আৰু এতিয়া ৰাতিও শুব নোৱাৰোঁ। ৰাতি পূৰা বৰষুণ দি দিয়ে, বৰষুণ দিলে মানে শুবলৈ অসুবিধা হয়। বহি থাকোঁ, চিডিঅ'বোৰ কৰিছে আছে, বৰ্তমান আগৰ ভিডিঅ'বোৰ নাই। মোবাইলটো চাৰ্জত নাছিলে 3-4 দিনলৈকে। যেতিয়া চৰ্টৰ ওপৰত ৰক্ষা কৰিলোঁ জীৱনটো, তাৰপৰা চৰ্টৰ পৰা মই 5 নম্বৰ দিনাখনৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ ঘৰখন চাম বুলি। আহিলত তাৰমানে ঘৰত থাকিব নোৱাৰি, মই ভাবিলোঁ টিঙৰ ওপৰতে থাকোঁগৈ। টিঙৰ ওপৰত আছিলোঁ, তাৰপিছত দিলে ডাঙৰকৈ বৰষুণ দিলে। মই নামি আহিলোঁ লৰালৰিকৈ, নামি আহিলত তাৰমানে তলত যে কিবা পৰি আছিল মই নাজানো, তেতিয়া পানী একঁকাল হৈ আছিল। তলত এখন তক্তা পৰি আছিলে, তাত গজাল নাই, 2 চাইডে ৰাস্তা বন্ধ, যাবও নোৱাৰি। অলপ কিবা এটা চেষ্টা কৰি ওলাই গৈ ৰিলিফৰ গাড়ীখন আপোনালোকৰ নিচিনাকৈ আহিছিল দেই, ভগৱান ৰূপে আহিছিল চাগে। তেওঁলোক আহিছিল কাকপথাৰ বুলি কৈছিলে, কোনফালে আছে জানো, ডিব্ৰুগড় ফালে আছে নেকি। তেওঁলোকে কি কৰিলে, মোক সেই ৰিলিফৰ গাড়ীতে লৈ গৈ নাজিৰালৈকে নিলে। নাজিৰা হস্পিটেল বন্ধ, ফাৰ্মাচী এখনত মোক টিটিনাছ বেজী এটা দি তেওঁলোকে মোক পইচা 500 দি সহায় কৰি পঠিয়াইছে। মই তেওঁলোককো আপোনালোকৰ থৈ দি একদম বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হয়তো মই সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাবলৈ নাপালোঁ, ভগৱানৰ দৰে তেওঁলোকো আহিছিল সেই সময়ত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ, নহ'লে মোৰ ভৰিটো হয়তো চেফটি হ'ল হয়। টিটিনাছটো মই ল'বলৈ পোৱাৰ কাৰণে বৰ্তমান মোৰ ভৰিটো অকণমান ভাল পাইছোঁ। আৰু মোক ক'বলগীয়া সিমানে, যিখিনি পাবলগীয়া বিধায়ক ডাঙৰীয়া অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া, আৰু এইখিনি হৈছে GS 1 বুলি কয়, পানীবিল যমুনা মুখৰ। मैंने अपनी तरफ से मेरे भाइयों बहनों जितना हो सका, जो हो सका, जिसको मैं जानता हूं, हर किसी को इस बात को कि प्लीज गो एंड हेल्प पीपल देयर, जो जितना जहां से जो रिलीफ भेज सकता हूं। मैं देख के खुशी इस बात की कि हमारे लोग जहां भी हैं पूरे देश में, पूरे मतलब देश ही नहीं विदेशों में भी, वो अपनी तरफ से हर आदमी कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है। मैंने देखिए एक ऐसी, मैं अभी यहाँ से पर्सनल लेवल पे तो मैंने भी अपनी एक जो पूरे मतलब एज अ विधायक मुझे जो भी सैलरी मिलती है करीब सब मिला के जो होता है, जो अलाउंसेस वगैरह सब करीब 2 लाख के आसपास, तो मैं उस पूरे अमाउंट को भेज रहा हूं हमारे असम की जनता के लिए कि जो भी थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, 10 घर को, 20 घर को, जिसको तो जो थोड़ा रिलीफ मिल सके, कम से कम बस ये बात को मैं मतलब अपने मन को तो मना सकूं कि जब हमारे लोग वहां पे से इस हाल से गुजर रहे थे तो मैं कुछ तो कर पाया, कुछ तो किया मैंने, कर पाया नहीं पाया पता नहीं, कुछ तो किया।
एंड मुझे यकीन है हमारे असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी, वो खुद बहुत ही प्रोएक्टिव रहे। मैं तो उनको एज एसपी देखा हूं, उनको एज अ सीएम देखा हूं, वो हमेशा बहुत प्रोएक्टिव रहे हैं। इस बार भी मैंने देखा कि बहुत प्रोएक्टिवली और पूरी सरकार प्रोएक्टिवली लगी हुई है हमारे असम के लोगों की मदद करने के लिए। तो मुझे यकीन है कि सरकार का जो मदद है हमारे लोगों तक पहुंचेगा और हमारी जो जनता है, जो सिविल सोसाइटी है, लगातार मदद करना चाह रही है, पहुंच रहे हैं। आप सबको तहे दिल से धन्यवाद कि यही चीज है जो हमें इंसान बनाए रखता है। इट्स नॉट अबाउट अ प्लेस कि कौन सी जगह है, इट्स नॉट अबाउट लैंग्वेज, इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग, इट्स जस्ट अबाउट ह्यूमैनिटी। कि हम जैसा कोई इंसान कहीं अगर परेशान है और हमारा उससे कोई भी वास्ता रहा है, कुछ भी रहा है, कभी भी उस जिंदगी को हमने टच किया है या उन्होंने मुझे टच किया है, तो मेरा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम उसके लिए जो बन पाए वो करें। तो यही प्रयास में मैंने अपनी तरफ से जो भी भेजा, मैं फिर से आप सबके माध्यम से अपने सारे भाइयों बहनों जो भी थोड़ा भी मुझे मतलब मानते हो, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे हो सकता है, जो हो सकता है, अपनी तरफ से जरूर अपने वहां के लोगों को मदद पहुंचाइए। पानी कम हो रहा है लेकिन अब मदद की ज्यादा जरूरत होगी, तो आप जैसे हो सके उनके लिए मदद पहुंचाइए और जितना हो सके करिए। कुछ नहीं हो सके तो कम से कम प्रे करिए, उनके लिए ब्लेसिंग्स मांगिए और जो लोग ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करिए। लेट अस नॉट क्रिटिसाइज एनीवन, लेट अस नॉट किसी को पुल बैक करने की कोशिश ना करें। जो भी अच्छे मन से कुछ भी करे, एक तिनका भी अगर उसमें सहयोग करे तो उसको धन्यवाद देना चाहिए और उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए। तो मैं फिर से अपने सारे साथी जो हमारे वहां पे इस बाढ़ के चलते पीड़ित है, आपके इस फाइटर स्पिरिट को सल्यूट है। आप जिस तरीके से लड़ रहे हैं और जिस तरीके से अपने आसपास के लोगों को, जानवरों को, हर किसी की मदद करने की, बचाने की कोशिश कर, सल्यूट है आपको। हर उस वॉलंटियर को सल्यूट है जो कि इस बाढ़ में पीड़ित लोगों की मदद के लिए उतरे हैं। हर एक वो एडमिनिस्ट्रेशन के, पुलिस के, हमारे लोगों को सल्यूट है जो कि पूरे जान पे खेल के आप लोगों की मदद करने के लिए उतर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एंड हर उस आदमी को धन्यवाद है जो कि ऐसे एक मुश्किल घड़ी में हमारे असम की जनता के साथ सब खड़े हैं। तो आई रियली प्रे टू गॉड कि ये जो एक दुख का पहाड़ टूटा है ये जल्दी से खत्म हो, हमारे लोग फिर से वापस एक नॉर्मल जीवन में आ सकें। जो चीजें मतलब नुकसान हुआ है उसका कहीं ना कहीं कैसे भी, आई डोंट नो कितना हो पाए, बट कुछ भरपाई हो पाए, लोग फिर से एक पॉजिटिवली उस स्पिरिट के साथ फिर से शुरू करें, फिर एक बेहतरीन असम बनाने में आप सब लगे हैं उसके लिए फिर से आगे बढ़ें। और ये भाईचारा जो है, जो ऐसे माहौल में उभर के आता है, वो बरकरार रहे, बना रहे और हमेशा समझे कि हर चीज से ऊपर जो चीज आती है वो है ह्यूमैनिटी, वो इंसानियत है। कि एक इंसान अगर किसी प्रॉब्लम में, किसी मुसीबत में है, उसके लिए हम जरूर खड़े हों, जैसे भी खड़े हो सकते हैं। तो इसलिए माई होल प्रेयर्स टू द पीपल ऑफ असम एंड थैंक यू टू ऑल पीपल हु आर हेल्पिंग द पीपल ऑफ असम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असम गवर्नमेंट जो कि अपनी तरफ से पूरी तरह से लगा हुआ है वहां के लोगों को मदद करने में। मैं अगर हो पाए, आई डोंट नो, तो आ सकूं तो मैं जरूर पहुंचना चाहूंगा। एंड मेरे सारे साथी जिनको लगे कि मैं किसी तरीके से और काम आ सकता हूं, प्लीज फील फ्री टू लेट मी नो, या किसी तरीके से मेरे पास वो मैसेज आप पहुंचा दीजिए। मैं बाद में आपके मैसेजेस पढ़ूंगा, आपने जो भी यहाँ पे कमेंट्स में दिए हैं, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू बी ऑफ सम हेल्प टू ईच वन ऑफ यू। मैं फिर से खत्म करने से पहले ये बताना चाहूंगा कि वो जो पता चला ना कि चराई देव में आया ऐसा पहली बार जो बाढ़ आया, शिवसागर, जोरहाट, डिब्रूगढ़, इस तरीके से ये चीजें फैलते गई। इट वॉज वेरी हर्टिंग, क्योंकि मुझे याद है इवन चराईदेव का सुना मैंने, एसपी का जो ऑफिस था वो भी पानी के अंदर आ चुका है। मैंने कुछ सीन्स देखे, इट वॉज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। मतलब ऐसा लगा जैसे कि एकदम जैसे सब खत्म हो जाएगा। तो फिर भी आप लोग मजबूत बने रहे, इसके लिए रियली आई सल्यूट टू द स्पिरिट ऑफ पीपल ऑफ असम एंड थैंक्स टू द पीपल जो कि आपके साथ खड़े हैं और हमेशा ऐसे खड़े रहें। सो थैंक यू सो मच। ऑलवेज नो दैट देयर आर पीपल हु आर प्रेइंग फॉर यू। कभी भी ऐसा न सोचे कि आप अकेले हैं किसी भी लड़ाई में, पूरा देश आसाम के साथ खड़ा है। और हमारे देश में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं यही सबसे चाहूंगा कि सब लोग मिलके उस क्षेत्र के लिए, उस प्रांत के लिए हम सब मिलके खड़े हों। हम सब साथ हैं तभी हम देश हैं। तो
थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी आउट। मैं आई एम सेंडिंग 2 लाख रुपीज़ जो कि मैं अपनी तरफ से दे सकता, एक मेरे पूरे महीने का जो सैलरी आता है जो मैं भेज रहा हूँ अपनी तरफ से एक छोटा कंट्रीब्यूशन। हर आदमी से रिक्वेस्ट है कि जिसके कोई रिलेटिव रहते हो आसाम, जो कभी आसाम गया हो, कोई आसाम में दोस्त हो, ज़रूर कुछ ना कुछ मदद भेजिए। द पीपल नीड इट, द प्लेस नीड इट, एंड आई एम श्योर कि हमारे आसाम के जो लोग हैं हमेशा जानिए कि हमारा पूरा बिहार, हमारे जितने बिहारी हैं वो सब आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। हमारे बिहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा तिनसुकिया में एंड अपर आसाम, इवन गुवाहाटी में है। तो कहीं ना कहीं हमारे भी बिहार के भी लोग हैं जो इस फ्लड के शिकार हैं। तो हमेशा याद रखिए कि पूरा देश आपके साथ है, और हमेशा वो भाव रखिए कि कभी भी कोई ऐसा मुश्किल वक्त आएगा तो हमारा देश एक दूसरे के साथ खड़े होने में कभी पीछे नहीं हटेगा। सो थैंक यू सो मच एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ आप, एंड रीच आउट टू द एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट। आई एम नॉट गेटिंग वर्ड्स टू से, मेरे पास शब्द नहीं मिल रहा, मैं कैसे बताऊं। मैं कुछ वीडियोस देखा, इट वाज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। मैंने जिंदगी में बहुत डिस्टर्बिंग सीन्स देखे हैं, बहुत डिस्टर्बिंग हालात से गुजरा हूं, बट कुछ ऐसे हालात मैंने देखे इस फ्लड के टाइम पे, बट आई वाज feeling very very bad for that. So my prayers to God that may Assam be saved, the people of Assam should get the strength to fight it out, and हम जैसे जितने भी लोग हैं असम में, असम के बाहर, हमें वो सद्बुद्धि रहे कि हम आपके साथ मजबूती से खड़े रहें और आपकी मदद करें। So thank you so much friends, God bless you all, and just take care of yourself, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग प्लीज। थैंक यू, प्लीज हेल्प असम। असम में जो फ्लड्स आए हुए हैं और जिस तरह की तकलीफ से गुजर रहे हैं असम और असम के लोग, तो इट्स वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। इनफैक्ट मेरी पहली पोस्टिंग असम में जहाँ थी चराईदेव ज़िले में, तो चराईदेव इनिशियल फेज में वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में से रहा, और मैंने देखा था कि चराईदेव जनरली फ्लड से अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता था। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि चराईदेव के लोग, चराईदेव का एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा वो फ्लड के लिए उस तरीके से तैयार नहीं था। जो दिखो नदी थी वो हमारे लिए बड़ी छोटी सी नदी होती थी, एंड कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो नदी सडनली उस जगह के लिए इस तरह से मतलब एक मातम का कारण भी बन सकती है। तो जो भी जिस तरीके से अब नेचर इज लाइक यू कैन नॉट से द फ्यूरी ऑफ नेचर। तो जब नेचर ने डिसाइड किया कि इट हैज टू गो इट्स ओन वे, तो अब किस पे हम दोष आरोपण करें, किस पे दोष किसको दें। तो बट आई एम रियली फीलिंग सॉरी फॉर द पीपल ऑफ चराईदेव, स्पेशली हमारे अपर असम के काफ़ी सारे ज़िले, इवन गुवाहाटी तक भी मैंने देखा कि काफ़ी लोग त्रस्त हैं, और ये भी देखा कि बाकी देश में सब लोग अलग अलग इश्यूज़ को लेके जूझ रहे थे, वो चाहे प्रोटेस्ट हो, चाहे इलेक्शंस हो, चाहे और भी जो लोकल मुद्दे हो उनको लेके। एंड आई फेल्ट बैड कि बहुत बार हमारे यहाँ पे भी नॉर्मल जो मीडिया आता है या जो न्यूज़ आता है उसमें असम की ये जो इशू है वो कवर नहीं हो रहा उस तरीके से। आई फेल्ट बैड अबाउट इट, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं वहाँ पोस्टेड रहा हूँ, मैं ध्यान देता रहता हूँ क्या चल रहा है। हमारे दोस्त लोग हैं जो कि बताते रहते हैं कि क्या चल रहा है, तो मुझे पता चला। सच कहूँ तो मुझे भी थोड़ा लेट से पता चला, एंड आई फेल्ट वेरी वेरी बैड। तो मेरे जितने साथी दोस्त हो सकते थे, मैंने सबसे बात किया कि आप लोग कुछ रिलीफ के लिए वहाँ पहुँचिए, किस तरीके से मदद कर सकते हैं करिए, क्योंकि हम लोग यहाँ बाकी चीज़ों में उलझे रहे हैं। मन तो हमेशा जाता है कैसे, क्योंकि ऐसे लोग इन फ्लड्स में फंसे जो कि मैं 1-to-1 उनको जानता हूँ, एंड हमारे मित्र थे शिवसागर में, नाजिरा में वगैरह, तो बता रहे थे कि किस तरीके से इंसान को बहते देख लिया, जानवरों की जो हालत, इट वॉज रियली वेरी पैथेटिक एंड बैड। 2019 में जब मैं पोस्टेड हुआ था एज एसपी चराईदेव, उस साल भी बाढ़ आया था, एंड पूरे असम में आया था। चराईदेव में उस तरीके से नहीं आया था, पूरे असम में आया था। और कहीं ना कहीं असम का जो ज्योग्राफी है ऐसा है कि इट्स अ वैली, तो उसमें अक्सर बाढ़ से ये जो पीड़ा है जिससे बार बार असम के लोगों को गुजरना पड़ता है, फिर भी वहाँ की सरकार हर बार मजबूती से लगती है। उससे भी ज़्यादा वहाँ की सिविल सोसाइटी जो है, जो लोग हैं, मैंने देखा है कि नेचुरली उभर के आते हैं वहाँ पे लोग मदद करने के लिए। खुद प्रॉब्लम में है लेकिन फिर भी किसी को मदद करने आता है। दैट्स अमेजिंग पार्ट जो कि मैंने असम में देखा और अब की बार भी देख रहा हूँ। तो मैं इतने दूर हूँ, माई ऑल हार्ट गोज फॉर माई पीपल देयर, और
मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता अपने दोस्तों को, साथी को, जिसको जानता हूं, मैंने कहा कि आप प्लीज वहां पहुंचिए, जिस तरीके से रिलीफ पहुंचा सकते पहुंचाइए। और मैं जो कर सकता हूं, तो 2019 में आई रिमेंबर कि जब हुआ, आई वाज रियली वेरी पेन्ड। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तो, क्योंकि एक जिले में था, मैं कहीं जा नहीं पा रहा था, तो वो होता नहीं कि अब कैसे मैं करूं, मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो उसमें मुझे तब समझ में आया, तो मैंने तब अपनी एक पूरे महीने की सैलरी जो थी वो आई हैड गिवन टू चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड फॉर फ्लड्स। तो उसमें मैंने देख के जो भी एक छोटा सा मेरी तरफ से जो जेस्चर हो पाया था वो किया था। जितने जिसको जानता था उनको सबको कहता था कि जितना जो बन पाए करो। तो इस बार भी कुछ ऐसी ही स्थिति हो रखी है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं वहां पे जाऊं, अगर मैं खुद जाके वहां पे एक्टिवली कुछ करना चाहूं, तो आई नो क्या बताऊं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अब एक ऐसी प्रोफेशन में हूं, राजनीति में हूं, कि कुछ भी करो तो लोग उसमें राजनीति देखेंगे कि भाई राजनीति करने चला गया, वहां चला गया, हीरो बनने जा रहा है। आई फील बैड, यू नो, समटाइम्स आई रियली फील वेरी हेल्पलेस कि हर चीज दुर्भाग्य कि आप कुछ भी अच्छा भी करना चाहें तो उसमें पीपल ट्राई टू फाइंड आउट अल्टीरियर मोटिव्स, व्हाट एवर इट इज। ৰেচন বা প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী, কাপোৰ ইত্যাদি বিলালে আৰু আজিৰ দিনটোৰ পৰা তেওঁলোকে নিশাৰ ভাগত কেম্পে কেম্পে খাদ্যৰ যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। কাৰণ সেই মানুহবিলাকৰ ভাত ৰান্ধিবলৈ বাচন বৰ্তন বা খাবলৈ কাঁহী বাচন একো নাই, সকলো বানত উটি গ'ল। সেয়েহে কিছু প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে। মিলন বুঢ়াগোহাঁই আছে আমাৰ সৈতে। আজিৰ এই যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এই বৰ্ণনাতীত। আগতে এই মানুহখিনিয়ে বান দেখা নাই, আৰু আমি দেখিছোঁ যে এই বান অহাৰ পিছত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাইজ ওলাই আহিছে বন্যাৰ্তৰ কাষত। আপোনালোকেও বিশেষ কিছু পদক্ষেপ হাতত লৈছে, গতিকে কি ক'ব, কি পৰিৱেশ দেখিছে ইয়াত? শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউবাসী ৰাইজে মৃত্যুৰ দুৱাৰদলি দেখি পালে বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ যিটো বানৰ যি বিভীষিকা আৰু যিটো পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশ শিৱসাগৰ, যোৰহাটে হওক, চৰাইদেউ হওক, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড় মানুহে কেতিয়াও দেখা নাছিল। এই দেখি এনেকুৱা এটা অৱস্থাত হৈছে, সেই অৱস্থাটো যিসকল লোকে ইয়ালৈ আহিছে সেইসকল লোকেহে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে। আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিলৈ আমি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, এইকাৰণেই যে এই বিপদৰ সময়ত সহায় কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে উবৰি খাই পৰিছে। আৰু আমি দেখিছোঁ যে আজি বিগত বান আৰম্ভ হোৱাৰ দিনৰে পৰাই আমি যিমানখিনি পাৰোঁ, কাপোৰৰ পৰা আদি কৰি খোৱা বোৱা সামগ্ৰী সকলো আমি চেনিটাইজাৰ, পেডেই হওক বা মেডিচিন আমি ব্যৱহাৰ সকলোকে দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, যিমানখিনি পাৰিছোঁ। অন্যান্য দল সংগঠনেও দিছে। কিন্তু এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে শেহতীয়াকৈ প্ৰায় মানুহে কিঞ্চিত মান হ'লেও বস্তুবিলাক পাইছে, সামগ্ৰীবিলাক। এতিয়া দেখিছোঁ যে শিবিৰবিলাকত কিন্তু খোৱা বোৱাৰ কিছু অসুবিধা আছে। গতিকে আমি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই আজিৰ পৰা এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে দিনৰ বেলিকা আমি যিমানখিনি পাৰোঁ সামগ্ৰী, খাদ্য সামগ্ৰী হওক বা পিন্ধা উৰা কাপোৰ কানি, আমি সামগ্ৰীবিলাক আমি বিতৰণ কৰিম দিনৰ পোহৰত। আৰু বিয়লি বেলালৈ আমি এটা কেম্প বাছি লৈছোঁ প্ৰতিদিনাই, যাতে আমি এসাঁজ সুদাই নিকাই হওক লাগে আমি ৰাইজক কিন্তু সেই লোকসকলক বনাই মেলি নিজেই যত্ন কৰি কৰ্মকৰ্তাসকলে বনাই নি খুৱাব পৰা এটা ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ। আৰু প্ৰতিদিনে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাৰ্যসূচী হাতত ল'ম। আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে যিদৰে সহযোগ কৰিছে, এই শিৱসাগৰবাসী ৰাইজে, শিৱসাগৰ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে যিদৰে সহযোগ কৰিছে, প্ৰতিটো দল সংগঠনক এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈ ৰাইজক সকাহ দিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। প্ৰত্যেকটো দল সংগঠনেই ওলাই আহক, ৰাইজৰ লগত থিয় দিয়ক। এয়া নিশাৰ আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এওঁলোকক বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তেওঁলোকৰ সতীৰ্থসকলে আহি ইয়াত বাহৰ পাতিছে, তেওঁলোকে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম, অকণ কথা পাতিম। আমি দেখিছোঁ কেৱল ইয়াৰ স্থানীয় আপোনালোকৰ সংগঠনৰ নেতৃত্ব বা কৰ্মীসকলেই নহয়, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কৰ্মীসকল আহিছে আৰু নিষ্ঠাৰে সেৱা আগবঢ়াইছে। কেৱল আপোনালোকৰ সংগঠন বুলিয়ে নহয়, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাইজৰ যিটো এই সময়ত এটা সহানুভূতি, এটা সহায়, এক ইতিবাচক বাৰ্তা দিছে এই বিষয়টোৱে। চাওক, আজি চৰাইদেউ জিলা আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ যিটো বানৰ বিভীষিকা, এই বানৰ বিভীষিকা আচলতে বহু পশুধন, সা সম্পত্তি, বহু তথ্য পাতি মানুহৰ উঠি গৈছে, মানুহৰ সৰ্বসাৰা হৈছে সকলো দিশৰ পৰা। গতিকে আমি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছোঁ, সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি মিলন বুঢ়াগোহাঁইৰ নেতৃত্বত আজি শিৱসাগৰ জিলা, আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলা, গোলাঘাট জিলা, বিভিন্ন জিলা কৰ্মকৰ্তাসকলে আহি আমাৰ বিভিন্ন যিসমূহ বানবিধ্বস্ত অঞ্চল, সেইসমূহত আমি মিলন বুঢ়াগোহাঁইৰ নেতৃত্বত আমি তেওঁলোকক যিসমূহ আচলতে খাদ্য সামগ্ৰী, চিকিৎসা সম্পৰ্কীয় সামগ্ৰী, বস্ত্ৰ আদি যোগান ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আজি নিশালৈ আমি শুকান পুখুৰীৰ যি আমাৰ বানবিধ্বস্ত কেম্প আছে, এই কেম্পত আমি আচলতে এসাঁজ খুৱাবৰ কাৰণে সকলো সতীৰ্থই মিলি পেলাই আমি খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিব লাগি আছোঁ। প্ৰত্যেকটো দিনতে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ বিষয়ববী আছে আমাৰ সৈতে। শিৱসাগৰ জিলাখন এইবাৰ পীড়িত হৈছে, আগতে নেদেখা বান আপোনালোকে দেখিছে। কেনেকৈ আকৌ এই মানুহবিলাকে কঁকাল চিধা কৰিব, কেনেকৈ তেওঁলোকে থিয় দিব, কি দেখিছে সন্মুখত? ইতিমধ্যে আমি শিৱসাগৰবাসীয়ে হওক বা চৰাইদেউবাসীয়ে হওক, আমি 10 বছৰলৈ পিছুৱাই গুচি গ'লোঁ নতুন প্ৰজন্মখিনি। শিৱসাগৰত বৰ্তমান যি বান পৰিস্থিতি, যি অৱৰ্ণনীয় অৱস্থাত বৰ্তমানো আছে, এটা নতুন ঠাই পৰিছে বুলি আজি ৰাতি খবৰ পাইছোঁ। আজি পাণবেচা নতুনকৈ পৰিছে বুলি খবৰ পাইছোঁ। তো আমি কাইলৈৰ পৰা আমি এটা কথা চিন্তা কৰিছোঁ, আমি নতুনকৈ যিবিলাক ঠাই পৰিছে সেইবিলাকত আমি যাম, আৰু যিবিলাক ইতিমধ্যে বুৰি গৈছে
সেই জেগাবিলাকত আমি এটা কৈছোঁ যে আমি ভৱিষ্যতে শিৱসাগৰ জিলাৰ ভিতৰত এটা নতুন আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আজি শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে 100 বিঘা মাটিৰ কাৰণে শিৱসাগৰ জিলাত যি বানাক্ৰান্ত ৰাইজক কঠীয়া আমি যোগাৰ কৰিছোঁ আৰু 3-4 দিনৰ পিছত আমি তেওঁলোকক কঠীয়াবিলাক প্ৰদান কৰিম যিবিলাক ৰাইজে ইতিমধ্যে বানত আক্ৰান্ত হৈছে ক্ষতিগ্ৰস্ত আমি বিনামূলীয়াকৈ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে কঠীয়া 100 বিঘা মাটিৰ কাৰণে প্ৰদান কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ এটা গ্ৰহণ কৰিছে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই অকণমান মিলন বুঢ়াগোহাঁইৰ ওচৰলৈ আহিম কঠীয়া আপোনালোকে দিব বিচাৰিছে খুব ভাল পদক্ষেপ কিন্তু যিসমূহ পথাৰ বেছিভাগ পথাৰে এতিয়া পলসে পুতি পেলাইছে কৃষকসকলে সেই পথাৰসমূহত কি কৰিব কেনেকৈ খেতি কৰিব চৰকাৰে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে কি ইয়াত কাৰ্যব্যৱস্থা হ'লে কৃষকসকল উপকৃত হ'ব কি ভাবে আপোনালোকে প্ৰথম কথা হ'ল অসম চৰকাৰে বান বিধ্বস্ত লোকৰ কাৰণে যিমানখিনি কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে আমি শলাগ জনাইছোঁ দ্বিতীয় কথা হ'ল কৃষি বিভাগটোৱে বিশেষভাৱে এজন দক্ষ মন্ত্ৰীৰ হাতত কৃষি বিভাগটো এতিয়া পৰিছে গতিকে আমি তেখেতৰ প্ৰতি আহ্বান পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি যে যিসমূহ পথাৰ ইতিমধ্যেই বানৰ কবলত পৰি তছনছ হৈ গৈছে সেই পথাৰসমূহত কৃত্ৰিম পদ্ধতিৰে কিদৰে কৰিব পৰা যায় তাৰ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু অসম চৰকাৰে শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউৰ কাৰণে স্পেচিয়েল পেকেজ এটা দিব লাগে যিটো পেকেজতে এই দুয়োখন জিলা 20 বছৰ পিছুৱাই যাব লাগিব বুলি ক'ব আজি প্ৰেক্ষাপটত সেই 20 বছৰ কেনেকৈ আগুৱাই নিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে এটা পেকেজ দিব লাগিব আৰু আমি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে উদ্যোগ লৈছে যে কঠীয়া 100 বিঘা মাটিৰ কাৰণে কঠীয়া সদ্যহতে 100 বিঘা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি আৰু যত্ন কৰিম 100 বিঘা মাটিৰ কাৰণে কঠীয়া ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কিন্তু আমি কৈছোঁ যে যিহেতু এই বৰ্তমান পথাৰবিলাকত কঠীয়া ৰুব পৰা ব্যৱস্থা নাই কিন্তু যিসমূহ পথাৰ ইতিমধ্যে ক'ৰবাত ক'ৰবাত ভাল হৈ আছে ৰাইজে যিদৰে ইজনে সিজনক সহযোগ কৰিছে সেই পথাৰসমূহত একেলগে খেতি কৰি যাতে সকলোকে বিলাব পৰা যায় তাৰ কাৰণে ইউনাইটেডলি সকলোকে থিয় হ'বৰ কাৰণে আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু চৰকাৰে বিশেষকৈ কৃষি বিভাগটোৱে ইয়াৰ ওপৰত যাতে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ আৰু উপযুক্ত যাতে কৃত্ৰিম পদ্ধতিৰে যাতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে নতুন আধুনিক পদ্ধতি যাতে লগাব পাৰে ৰাইজক সকাহ দিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ